Okay, very good morning, students. We have to do the revision of lesson 1. हमने कल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मैम ने करवाया होगा. Today we will start with heterotrophic mode of nutrition. Right? Before that, let me tell you how to write the activity. One activity is there. Note down. Aim क्या है? To study the action of different indicators on different solutions. ये आपकी एक एक्टिविटी थी. Action of, it is already given in the syllabus. Different indicators on different solutions. Things required, very simple activity this is. Things required, test tubes, I don't know, you were busy. Then test tube stand, HCl. HCl क्या होता है? Don't you know? Hydrochloric acid. How to write HCl? HCl. उसके अलावा this is acid also which is available in the lab. NaOH, sodium hydroxide, ये base है. NaOH, different indicators. Then come to method. Different indicators. हो गया? Then different indicators. You are behaving like that you are listening to me for the first time. Coming to method. Take test tubes. Take few test tubes and add small amount of acid in them. And add small amount of acid in them. And in other few test tubes, add base, full stop. Now add different indicators in them one by one and observe the result. Then आ गई ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन कैसे लिखनी है आपने? सीरियल नंबर, इंडिकेटर, यस इंडिकेटर. क्यों बना रही हूं मैं? एसिड, बेस बन गया. फर्स्ट इंडिकेटर लिटमस, 2 टर्मरिक, 3rd China rose, number 4 phenolphthalein, number 5 methyl orange. ये सारे इंडिकेटर्स हैं, हमने करे थे.
हाँ जी, एसिड पे इसका क्या असर होता है? हाँ, ब्लू लिटमस रेड, ब्लू टू रेड, और बेस पे रेड टू ब्लू, ये हम लिखेंगे। टर्मरिक का असर क्या होता है? टर्मरिक का एसिड पे नो इफेक्ट, और बेस पे रेड हो जाता है। चाइना रोज, चाइना रोज का क्या इफेक्ट है? मैजेंटा, और बेस, बेस का क्या कलर है? ग्रीन। फिनोल्फेथिलीन, फिनोल्फेथिलीन का क्या है? यहां पे नो इफेक्ट, और इसका टर्न्स पिंक, बेस पिंक हो जाता है। राइट, देन कमिंग टू मिथाइल ऑरेंज, रेड इन एसिडिक एंड येलो इन बेस। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। क्लियर हो गया? तो अब व्हाइट पेज पे क्या बनाओगे? ऊपर एम, थिंग्स रिक्वायर्ड, नीचे दिस ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, डायग्राम में टेस्ट ट्यूब्स बना के एसिड बेस इंडिकेटर के साथ। जैसे डायग्राम में कैसे बनाओगे? फर्स्ट इंडिकेटर लिखा लिटमस, इसमें एसिड दिखाया, इसमें बेस दिखाया। इसमें क्या होता है? रेड कलर दिखाओगे, इसमें ब्लू कलर। ठीक है, नंबर 2 टर्मरिक लिया, इधर एसिड बेस, इसको रेड कर दोगे, इधर नो इफेक्ट, ऐसे सिंपल। इस तरह बनाओगे सारे इंडिकेटर्स के साथ। गॉट इट? सारे इंडिकेटर्स के साथ बनाओगे ये व्हाइट पेज पे। डन? हियर एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? कृष्णा टेक इट। एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन? Otherwise, recorded lecture is also there. Got it? Huh? It is given in the syllabus. Speak out the aim. To show the effect of to study the effect of different indicators. Chalo, one and the same thing. Action of different indicators on different solutions. Done ji? Coming to lesson 1 revision. Heterotrophic mode of nutrition we have to start. Bache, yesterday I think ma'am has told you there are 2 modes of nutrition: autotrophic, heterotrophic. Autotrophic is where green plants, autotrophic mode is possible in green plants which can make their own food, right? So that was covered yesterday by Kanika ma'am, right? Today we are going to start heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. What is heterotrophic mode of nutrition? Hetero means others. Trophic means nutrition or nourishment. ठीक है, nourishment. तो it means
organisms which depend on others for their food requirements. How do they depend? It is of different types. कोई किसी तरह dependent है, कोई किसी तरह dependent है, right? So first mode of nutrition is saprotrophic. Saprotrophic mode of nutrition. Here we will be doing about plants. यहाँ पे हम plants की बात कर रहे हैं. तो saprotrophic mode of nutrition क्या है? इसमें क्या होता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन प्लांट्स, they take their nutrition from dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter. जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, राइट? इज दिस क्लियर? और ये जो प्लांट्स है, ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड मैटर से ले रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स. क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स. किनको बोल रहे हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स को, जो अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, राइट? इसकी एग्जांपल क्या है? इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे. इंडियन पाइप एंड कोरल रूट, ये एग्जांपल्स हैं इसकी. इज दिस क्लियर? अगर कनिष्ठ थोड़ा बहुत नोट डाउन करो, क्योंकि मैं भी डिटेल नहीं करवा रही, तो इट विल बी बेटर. वो नोट करे आपका काम. That will be there in the recorded lecture. Give it to him. Are you noting down? हाँ जी, सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइट्स की एग्जांपल है. मतलब वो कौन से नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं? दे आर इंडियन पाइप और कोरल रूट. होता क्या है, इन प्लांट्स की रूट्स में, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोला जाता है फंजाई. इन प्लांट्स की रूट्स में देयर आर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंजाई. कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? फंजाई. फंजाई जैसे कि मशरूम. यू नो मशरूम इज ऑल्सो फंजाई. हाँ, जैसे कि मशरूम इनकी रूट्स में होती हैं. अब ये फंजाई क्या करते हैं? ये कैसे अपना फूड लेते हैं? These fungi, they secrete digestive juices. They secrete digestive juices on dead and decaying matter. Right? ये जो फंजाई है, जो इनकी रूट्स पे बैठे हैं, इन्होंने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट किए किस पे? जो डेड मैटर है, राइट? और उसको क्या हुआ? ये जूस सिक्रीट करने के बाद दिस मैटर, डेड मैटर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड. ये किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में, राइट? और ये लिक्विड फॉर्म इट इज नाउ यूज्ड बाय नॉन ग्रीन प्लांट्स. Is this clear? This liquid form is now used by non-green plants, right? Is this clear? अब ये जो फंजाई हैं, जो ये काम करते हैं, जो सिक्रीट कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस, इनको बोलते हैं हम सैप्रोट्रॉफ्स. क्या बोलते हैं? ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो फूड ले रहे हैं, दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स. और ये जो फंजाई है जो हेल्प कर रहे हैं, दे आर नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स, राइट? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अर्लियर, बहुत साल पहले, फंजाई को प्लांट किंगडम में रखा गया था. इनको प्लांट्स माना गया था. बट आफ्टर डिटेल्ड स्टडी
इट इज फाउंड दैट दे आर नॉट प्लांट्स। अब इनको एक सेपरेट किंगडम दे दिया गया है, फंजाई किंगडम। इनको हम एनिमल्स में भी नहीं रखते, इट इज फंजाई किंगडम। इज दिस क्लियर टू ऑल? Saprotrophic mode of nutrition is clear. Any doubt in this? Done? चलिए, ये है एक सर्कल सा बना हुआ है, वैसे ही कई वर्ड्स लिखे हैं, बट इसमें से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए, shall I erase this? Next mode is parasitic mode of nutrition. बच्चे, दो चीजें होती हैं, पैरासाइट होते हैं, एक होस्ट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? नो, पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। होस्ट होते हैं जिनका न्यूट्रिशन कंज्यूम किया जाता है। इस चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, एनिमल्स में तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, हमें पता भी है, हमने पढ़े भी हुए हैं, जैसे हुकवर्म जो हमारे स्टमक के अंदर रहती है, वो पैरासाइट है, हम उसके होस्ट हैं। लीच है, लीच जो ब्लड सक करती है, तो वो पैरासाइट है, हम उसके होस्ट हैं। ये तो एनिमल्स की एग्जांपल्स है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? इसकी एग्जांपल है कस्क्यूटा, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं। कोई भी नाम आ सकता है आपको, इसलिए इसको याद रखना। कस्क्यूटा को हम क्या बोलते हैं? अमरबेल। कस्क्यूटा एक नॉन ग्रीन प्लांट है। क्या है कस्क्यूटा? नॉन ग्रीन प्लांट। अगर ये नॉन ग्रीन है तो ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता। ठीक है, इसलिए इसको किसी और से फूड लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करता है ये? इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं। दिस लंबी लंबी ब्रांचेस दे स्विंग ऑन अनदर ट्री ब्रांचेस। जो इसकी रूट्स है या इसका जो और कोई पार्ट है, स्टेम्स जो होती हैं इसकी, ये किसी और प्लांट के अराउंड लिपट जाती है। ठीक है, और उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं। ठीक है, अब ये लिपटती कैसे है? ये उससे अपना न्यूट्रिशन कैसे लेती हैं? इसके कस्क्यूटा के तीखे तीखे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोला जाता है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया, ये हॉस्टोरिया दूसरे प्लांट की बॉडी के अंदर पियर्स करते हैं, जैसे नीडल जाती है, और उसमें से न्यूट्रिशन ले आते हैं और फिर इस प्लांट को मिलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। गॉट इट? तो कस्क्यूटा इसमें क्या है? पैरासाइट के होस्ट। पैरासाइट क्या है? कस्क्यूटा पैरासाइट, बिकॉज दिस इज obtaining the nutrition from other organisms. राइट स्टूडेंट्स? और दूसरा प्लांट, दूसरा ट्री जिससे ये ले रहा है न्यूट्रिशन, वो क्या है? होस्ट। तो बच्चे क्या है? पैरासाइट्स भी दो तरह के होते हैं। पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टोटल पैरासाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स। आई गेस आपको करवाया हुआ है ये। टोटल पैरासाइट्स, पार्शियल पैरासाइट्स। क्या होते हैं टोटल पैरासाइट्स? जो टोटली डिपेंडेंट है, जैसे कि कस्क्यूटा, जो टोटली सारा न्यूट्रिशन होस्ट से ले रहे हैं। पार्शियल पैरासाइट्स क्या हैं? पार्शियल पैरासाइट्स हैं, इनके ग्रीन लीव्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन लीव्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, पर इनको पानी और मिनरल्स होस्ट से लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मिसलटो, इसकी एग्जांपल क्या है? मिसलटो। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक आपकी फॉर्म में एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जो मैडम ने समझाया उसके खुद के नोट्स बनाए, वो तो है टोटल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, अपना काम किया सारा, खुद अपने नोट्स बनाए, उसमें से पढ़ाई करी, उसमें से अपनी कॉपीज कंप्लीट करी। एक होते हैं पार्शियल इंटेलिजेंट। वो पार्शियल इंटेलिजेंट क्या है? कॉपियां तो हैं उनके पास, नोट्स तो पढ़े हैं, पर वो अपनी कॉपी बनाने के लिए किसी और के नोट्स उठाएंगे, किसी और की कॉपी से चीटिंग करेंगे, तो वो है पार्शियल इंटेलिजेंस। इसी तरह ये है टोटल पैरासाइट्स।
ये टोटली डिपेंडेंट है, ठीक है, ये सारा फूड उन्हीं से लेते हैं। बट पार्शियल पैरासाइट्स क्या है, उनके पास ग्रीन लीव्स हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बट फूड प्रिपेयर करने के लिए जो वाटर और मिनरल्स चाहिए वो अपने होस्ट से ले रहे हैं। गॉट इट? दैट इज मिसलटो इसकी एग्जांपल है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? ऑनलाइन? ऑनलाइन एनी डाउट? चलिए चलिए नेक्स्ट कैटेगरी आ गई सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस क्या होती है? ये एक एसोसिएशन होती है। सिम्बाइसिस मेल मिलाप। हाँ जी, व्हाट इज सिम्बाइसिस? सिम्बाइसिस का पहले मतलब क्या होता है? सिम्बाइसिस का मतलब होता है एसोसिएशन, दो जनों का मिलना, दो जनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि तू मुझे नोट्स दे, मैं तेरी कॉपी बना दूंगा। दिस इज अंडरस्टैंडिंग, दिस इज सिम्बायोसिस। ठीक है, एसोसिएशन। आधा काम मुझे नोट्स नहीं बनाने आते, तू बना दे, और मुझे कॉपी नहीं बनानी आती, तू बना दे। तो इस तरह तू मुझे नोट्स दे दे, मैं तुझे कॉपी बना दूं। ये सिम्बायोसिस, एक दूसरे की हेल्प करना एसोसिएशन में। ठीक है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो क्या है इसकी एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है लाइकन। लाइकन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एसोसिएशन को बोला जाता है। किसकी एसोसिएशन है? एल्गी और फंजाई। जब भी वर्ड लाइकन आएगा इट मींस एल्गी और फंजाई इकट्ठे रह रहे हैं। इनकी एसोसिएशन को, इनके रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकन्स। गॉट इट? ये इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। क्या करते हैं? अब एल्गी है, इसके पास है क्लोरोफिल। इसके पास क्या पड़ा हुआ है? क्लोरोफिल। मतलब ये फूड खुद बना सकती है, राइट? अब फंजाई एल्गी क्लोरोफिल है, अपना फूड खुद बनाती है, और ये फूड फंजाई भी लेता है। बट ये पैरासिटिक भी हो सकता है, बट बदले में फंजाई इसको क्या दे रहा है? वाटर प्रोटेक्शन। जो पैरासिटिक मोड था उसमें क्या था? पैरासाइट जो था होस्ट को कुछ नहीं दे रहा बदले में, इसलिए हमने उनको, एक होस्ट का नुकसान कर रहा है वो। इसमें क्या है? ये आपस में एक दूसरे के साथ बना के काम कर रहे हैं, टीम, कि मैं तेरा फूड बना रहा हूं, तू मेरी प्रोटेक्शन कर। तो फंजाई क्या दे रहा है उसको? प्रोटेक्शन, वाटर एंड मिनरल्स, एल्गी टू मेक द फूड। दिस इज द एसोसिएशन। गॉट इट? इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है बड़ी इंटरेस्टिंग, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है जी? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये रहता है रूट नोड्यूल्स में। लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, राइट? ये क्या करता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया, इसकी खासियत है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। हमने, आपको याद होगा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ है, राइट? 6th में हमने करा था। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, प्लांट्स उसको फिक्स करते हैं। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय राइजोबियम, जो प्लांट्स कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, ये तो राइजोबियम का काम था। क्या था? कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू लिक्विड यूजेबल फॉर्म, इनटू सॉल्यूबल कर लो, इनटू सॉल्यूबल फॉर्म, जो डिसॉल्व हो जाए इसमें, और वो प्लांट के पास पहुंच गई। अब प्लांट बदले में क्या दे रहा है इसको, राइजोबियम को? फूड एंड शेल्टर। प्लांट ने क्या दिया इसको? फूड एंड शेल्टर, रहने को जगह दी और खाना दिया।
Is this clear? So this is symbiotic association, symbiosis. Is this clear? इस तरह से दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट हुआ, इस केस में भी बेनिफिट हुआ, इस केस में भी बेनिफिट हुआ। पैरासिटिक मोड, ध्यान से सुन लो, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस था? उसमें सिर्फ पैरासाइट को बेनिफिट हो रहा था, होस्ट को नुकसान हो रहा था। पैरासाइट सिर्फ होस्ट से खाने पीने का सामान ले रहा था, होस्ट को दे कुछ नहीं रहा था। यहाँ पे ये आपस में मिलके काम कर रहे हैं, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। they are living in relationship, right? Clear? Now इसके अलावा there are some other modes of nutrition also, कुछ और मोड्स भी हैं न्यूट्रिशन के। अदर मोड्स में क्या आता है? सबसे पहले आते हैं अदर मोड्स में insectivorous plants. Insectivorous plants means plants that eat, that consume insects also. क्यों खाते हैं ये इंसेक्ट्स को? क्यों खाते हैं? इसकी एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, पिक्चर प्लांट, ड्रोसरा, ये ग्रीन होते हैं। These plants are green. ग्रीन है मीन्स क्लोरोफिल है इनके अंदर, अपना फूड खुद बना सकते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम क्या है? दे कैन नॉट मेक प्रोटीन्स, ये अपनी बॉडी के प्रोटीन्स नहीं बना सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर सकते सराउंडिंग से, राइट? ये नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, इनके अंदर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये क्या करते हैं? ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं टू मीट दियर रिक्वायरमेंट। ये जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ये इंसेक्ट से पूरी हो जाती है। अर्जुन, इज इट क्लियर? व्हाई यू आर मेकिंग द फेस? हाँ, एनी प्रॉब्लम? तो क्या होता है? पिक्चर प्लांट जो होता है, पिक्चर प्लांट, पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। घड़ा आप सबने सुना होगा। एक तो आप स्पेलिंग गलत लिखते हो, आप पिक्चर लिखते हो, वो पिक्चर होती है तस्वीर, ये पिक्चर होती है घड़ा। घड़ा, इसका जो लीफ लेमिना होता है, लेमिना क्या होता है आपने पढ़ा है? लेमिना इज द बॉडी ऑफ द लीफ, ठीक है? इसका जो लीफ का लेमिना है ये सारा पिक्चर की शेप में बन जाता है ऐसे। लेमिना टेक्स द शेप ऑफ द पिक्चर, लीफ का जो लेमिना है। तो क्या होता है? जो एपेक्स है, लीफ का टिप है, वो बन जाता है लिड, वो लिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये लेमिना जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पिक्चर, घड़े जैसा बन जाता है। अब क्या होता है? ये लिड ओपन और क्लोज होती है। इस पिक्चर के अंदर इस तरह से हेयर है, रूट हेयर कहां से आ गए? इसके अंदर हेयर है, सिंपल हेयर जो कि नीचे को है। जैसे ही ये लिड ओपन होता है इस तरह से, जैसे ही कोई प्लांट इसके अंदर बैठता है, ठीक है, तो व्हाट हैपन इज वो इन हेयर के बीच में फंस के नीचे आ जाता है। नीचे को है ना, वो इन हेयर की मूवमेंट से नीचे आ जाता है, ऊपर से लिड क्लोज हो जाती है और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते ही वो एनिमल कंज्यूम हो जाता है, ठीक है? क्लियर? और इसका न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाता है इस तरह। एक और एग्जांपल है आपकी बुक में दी हुई है वीनस फ्लाई ट्रैप की, वो भी ऐसे ही है, खुला होता है लीफ, उसका ब्यूटीफुल कलर होता है, उसके नेक्टर होता है, वो ओपन होता है, तो जब इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है वो बंद हो जाता है और इंसेक्ट कंज्यूम हो जाता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो जैसे सेंसर होते हैं उसी तरह का है। तो अब वो बंद होने के बाद पता चलेगा उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होने के बाद कि वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है? विद दिस न्यूट्रिशन खत्म हो गई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो गई।
एक छोटा सा टॉपिक है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। सॉइल में, सॉइल से जो कंज्यूम हो रहे हैं मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, उनकी भरपाई कैसे होती है। स्पेशली नाइट्रोजन ये सॉइल से ली जाती है, प्लांट्स ये लेते हैं सॉइल से, सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बट ज्यादातर नाइट्रोजन कंज्यूम की जाती है यूजेबल फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है अर्जुन, सोना नहीं है, गेट अप। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी कमी जल्दी हो जाती है, गॉट इट, ये जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए नंबर 1, एक तो सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी कमी को पूरा किया जा सके। दूसरी बात, राइट, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रह रहे हैं रूट नोड्यूल्स में, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं और उसमें आती रहती है। ये 2 तरीके हैं जिससे नाइट्रोजन रिप्लेनिश हो जाए। यस सुहाना, एनी डाउट? मैम मुझे 6th चैप्टर में से डाउट था मैम, एक बार वो वाली इक्वेशन रिपीट कर दो जिसमें विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन होता है। किसमें? इसमें बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन होता है 6th चैप्टर में। हाँ जी। विनेगर का क्या फॉर्मूला है? CH3COH, COH एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, मैं लिख देती हूँ। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? CH3COH एसिटिक एसिड, ठीक है। प्लस सुहाना किसके साथ रिएक्शन करना है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बोलो। NaHCO3। NaHCO3। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? ये H यहां से रिमूव हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये छोड़ो, आप लर्न करो। CH3CONA प्लस CO2 प्लस H2O, ये बना। ओके मैम। यस मैम। इसमें ये जो है दिस इज सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट बेसिकली आपकी बुक में दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हमने ये प्रूव करना है कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव होती है, और इसका टेस्ट करते हैं हम लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है। चलिए, वी विल बी मीटिंग टुमारो।